about joins, most of people made mistake while expressing joins in the interview. So mostly they deselected because developers would have added all the joins, because joins make us make the query simpler, and we can say that useful report, and we can say for business analysis. Because in rdbms, if you are not using joins, means that the database will normalize, and that will hamper all the that is all the resources to databases as well applications. So always think to normalize your table on the basis of keys that we have, that is primary key, foreign key, unique key, candidate key. So these are the keys. We should have knowledge on that, and how can we use in our environment, because these are the keys to help us to optimize our queries. So this is a part of performance tuning. This is not a stage to learn. I can say that this is not point to provide a KPI on the performance tuning, but you should have some knowledge on it basic. So that is the joins. We have inner join, outer join, left join, right join. We can say that full join, cross join, union. So just think about the name, nothing else. If anyone going to say or asking about the right join, means that the right side of the table is master. So all the columns of the table will fetch in right join, and the similar column that match in that left column, left table. That is, if you have an example of A and B table, if we have a A table and B table, so I am going to if anyone asks you that what is left join, so how can you express that? Means that it will return all the columns from the left join and the matching from the B table. So that is a left join. In right join, that is right table, that is B is master, means all the columns from the B and the matching from the non-matching from the A table. So that is a right join. So you have to think on this type of joins and make a practice on that. And this diagram so easily, because no one can go to read line by line. So that diagram will show us and easy to learn how the joins work. Because in previous couple of bugs, I have seen that they are not able to write the joins, not able to fetch the data from the table. So that's why I have initiated this training, because they are not active that point of time to learn databases, because they think that they have to write on Angular, they have to write in Java and .NET and C#, so they don't think we have to know about the database and joins. So that is their experience and their thought. But being a developer, being a DBA, every should have knowledge on joins, because it is a part of performance tuning, optimizing of the application, so that will help to improve your application performance. And you have heard many times that my application is getting slow, hanged, or not getting a report on time. So that is a problem, because you are calculating some different columns and calling some functions to calculate and manipulate that data in temporary on the basis of join. So you have to think which join is appropriate for that type of application and the requirement. So before writing any query, just mute please. So you have to think on what is echoing? Someone is echoing. Okay. So I can right now go here. So please mute mobile or anything else in laptop. We are joined from both. Sorry. So you have to think about that join, because it will help you to boost your application performance, as well as we can say that
databases. So this is a main core of the development, joins normalization. Two things are, I think we can say, the hero of the development. If anyone have an idea about the normalization and the joins, he will or she will able to write the best optimal queries that will not use the more resource of the databases and application or network. So do some research, do some practice in the local environment, and practice that. So far we have learned in couple of sessions, like I'm just reminding all the sessions, like that is you are able to write a query, select a statement and insert. Someone able to create a primary key as well, as seen in document, and many more, that is application database level and OS level of commands. So keep in practice, and that will help you. Just do Google on that is cron job, because in Linux you do not face and find any GUI tool. So there is a tool that is cron tab for OS level, that for automations and scheduling any task. So if you want to insert or run a batch in any scheduled time, any odd time, so you can call that procedure, or you can say fail command from that cron job. And we have also see about that data type. I think I am not explaining about data type. Okay, that is indexes and basic tools. So Postgres have a PG tool, sorry, PG, and that is for clustering. Sorry, PG admin for GUI tool and PSQL for CLI. So these two things we have to work on along with the Postgres. So just try to work on that. Basically, you think to write a command, don't use GUI tool, because in production or in client side area you don't get the PG admin tool. So keep in practice to write a query on that CLI only, that is PSQL. That is very helpful. In Oracle you cannot get any development tool, that is SQL development tool you not get. So think on practicing and writing the queries. And any questions, please let me know, because I think this is the last session, and I think you are aware about the basic of databases and the OS level. Yeah, anyone please? All are good? Hello. Yeah. Can you explain normalization? That is, normalization is way to removing the duplicate keys and duplicate data from the suppose there is a drawback, like you cannot update or delete on the basis of the. So that is a part of this is part of SDB, that is for NSDB, for Excel. Because you have you can write multiple same data in Excel, but in rdbms, if you enable that primary, that should be a documenting column, unique for all the transactions. So uniquely identified column in rdbms. So we have a norm 1, norm 2, and norm 3 and bias code normalization. So you have to just think to removing the duplicate columns and keys and duplicate data from the tables. Nothing else. This is a normalization. So first is you have to keep one key in a table. That is a good way.
Second thing, we do not keep duplicate columns in a table. And third is we have to follow that we can say ER modeling type, that is joins and the other things. So that will help to boost the performance. This is also written in that EF4 rules. So that will help you to write or create a best and optimal database and as well application. So just make a note on that, and this is a part of development, so I am not going deep in that. So you have to just memorize that and make it in your daily use. That will help you, because when you go to being a programmer or project lead, so you should have knowledge on that. Then you can design a document and you have to plan for that project. So that is a basic thing. So every developer should have an idea on that, because they are going to design the application as well as database and the document. Anyone? So आप अभी तो कॉलेज से आए हैं तो आपको पता नहीं कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कैसे चलता है. तो जरा सा मैं उसमें हेल्प कर दूँ कि आपको थोड़ा सा जो होती है ना एजुकेशन आती है, तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं और वो अंदर ही अंदर थोड़ा सा उनको घुटन सी लगती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम खत्म हो जाती है. तो थोड़ा सा आप शांति रखिए और या समझ सेइंग समथिंग हु इज दैट दीसा. तो आपको क्या करना है कि जस्ट डेली कुछ ना कुछ सीखना है, और कम से कम 1.5-2 साल तक तो सीखना ही पड़ेगा. नेक्स्ट कमिंग 1 and 5 years you have to do hard work, because any confirmation you have to do hard work, because if you are not perform well, then company will think about that your performance, and you cannot get confirmed and many things. So just try to learn. टाइम पास करने की जरूरत नहीं है. जितना कॉलेज के कैंटीन में हुआ, चाय पिए या जितनी भी मजाक मस्ती किए, थोड़ा सा उससे थोड़ा दूर हटिए और थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कीजिए कि अगर हम एसी बने हैं तो सीखने की जो ललक होनी चाहिए वो कम नहीं होनी चाहिए. अगर जिस दिन अपने सीखने की भूख खत्म कर दी ना, उस दिन आपका ग्रोथ रुक जाएगा. और मेरे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल. तो मैं नहीं चाहता एग्जाम्पल देना, अपने भी काम. तो आई थिंक आपको जो भी करना है एक प्रॉपर वे में करना है. नहीं आता है आप बार बार पूछिए. मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको यहाँ मना करेगा, कोई भी. अगर बिजी है तो आपको थोड़ा सा देर के लिए इग्नोर करेगा, बट रिस्पॉन्स तो पक्का करेगा. सो एनवायरमेंट इज टोटली फ्रेंडली, बट मेहनत आपको खुद करना है. यहाँ कोई आपका काम करके नहीं देगा. आपको ये लगता है कि नहीं मेरे सीनियर हैं, उनको एक्सपीरियंस है, अगर मैं उनसे थोड़ी सी भाई बात कर लूंगा तो मेरा काम कर देंगे. नहीं, आपको गाइड कर सकते हैं, पाथ दिखा सकते हैं, लेकिन करना आप ही को है, चलना आप ही को है. तो थोड़ा सा मतलब मैं बोलूंगा कि कॉलेज के माहौल से, फैमिली के माहौल से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो आईटी का जो जॉब है ना, अगर इंसान इन दोनों चीज से बाहर नहीं निकला तो आगे नहीं बढ़ पाएगा. मैंने अब तक बहुत लोगों को मतलब ट्रेनिंग दिया, डीबीए बने, और ऊपर वाले की मेहरबानी की में ज्यादा सैलरी कमाते हैं, बिकॉज दे हैव अ डॉक्यूमेंट, दे हैव अ प्रोफाइल, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट दे आर गेटिंग. तो ये सब कोई मायने नहीं रखता, पैसे सब कमाते हैं, लेकिन शिक्षा कौन है वही आगे बढ़ता है. गुजरात के लोगों को देखो आप, पढ़ते तो हैं लेकिन खुद का बिजनेस चालू करते हैं, उनको इतनी हिम्मत रहती है. लेकिन नॉर्थ इंडिया और साउथ में देखिए बहुत कम लोग मिलेंगे कि चाहते बस नौकरी करें और खाए पिए और घर जाए, बस वो डेली मजदूरी, पोस्ट ऑफिस वाली ड्यूटी, 9 to 6 वाली स्टडी. तो अगर ऐसा जिंदगी जीना है तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शनल करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी. और मैंने उन सब लोगों का हेल्प किया है जिन्होंने अपने आप में थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में. ठीक है, तो पढ़िए, जितना पढ़ना रिसर्च कीजिए. कोई भी डाउट हो डेवलपमेंट को छोड़ करके
उसे मैं गाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं डेवलपमेंट नहीं की पिछले 10 सालों में, कभी नहीं डेवलपमेंट किया। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर मुझे पता है, प्रॉब्लम कहाँ है वो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। लेकिन आप सोचोगे कि मैं उसमें कोड के बारे में कुछ बता दूं कि भाई पब्लिक और प्राइवेट कैसे लिखना पड़ता है, क्लासेस कहाँ यूज करना है, तो भैया आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट दैट किसी भी एडमिन पार्ट का काम हो, या फिर नेटवर्क एडमिन हो, सिस्टम एडमिन हो, डेटाबेस एडमिन हो, या शेयर पॉइंट एडमिन हो, बिजटॉक एडमिन हो, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का हो, तो आई थिंक मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट पे जो भी प्रॉब्लम आपको आती है, आई विल हेल्प ऑन दैट बिकॉज आई एम सर्टिफाइड, आई एम द technology specialist of Microsoft, so that is different because I am focusing since 13 years on Microsoft only, not on Java, not on Oracle. तो आपको जितना भी हेल्प लगेगा मैं दूंगा, लेकिन मजाक मस्ती नहीं चलेगी, थोड़ा सीरियस रहिए, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मजाक किए मेरे सामने हैं और मीटिंग में मैं बोल देता हूँ, मुझे ही बोलता हूँ तो भैया आप मेरे पास तो आना ही मत, किसी और से सपोर्ट ले लो, मेरे पास नहीं आना, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। अगर मुझे बुरा लगता है तो किसी को बुरा लगता है, डोंट केयर, जो सच है वो सच है। इसलिए मेरे मैनेजर भी मेरे से खफा रहते हैं, अगर उन्होंने कुछ गलती की है और प्रोसेस के विरुद्ध कुछ गया है तो मैं बिना बोले चुप नहीं रहता है। और मोस्टली टाइम मैं तो वैसे ही लड़ते ही रहता हूँ प्रोसेस को लेकर के। तो प्रोसेस इज द मेन थिंग। अगर आपने प्रोसेस बना लिया अपना कि डेवलपमेंट में अगर मुझे जाना है तो पहले डिजाइन डॉक्यूमेंट होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, कोड रिव्यू से पहले हमें डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे, देन कोडिंग करेंगे, कोड रिव्यू होगा, डिप्लॉयमेंट में जाता है। तो ये सब प्रोसेस अगर फॉलो होती है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करने की जरूरत है डेली। लेकिन गलतियां जब होती हैं तो काम ज्यादा करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लोग 12 घंटे काम करते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ ड्रॉबैक्स है, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला भी कि 12 घंटे काम करने की क्या जरूरत है अगर आपने 8 घंटे में प्रॉपर काम करके देते हो। सब लोगों के अपना अपना ये क्या करते हैं, लाइफ स्टाइल है, कोई सुट्टा मारने जाता है, कोई चाय पीने जाता है, कोई गप्पे मारता है बैठ करके, तो वो टाइम किलिंग करते हैं। लेकिन मेरे में ऐसा आदत नहीं है। और डीबीए जहाँ भी तुम्हें आपको मिलेंगे डीबीए ना, डीबीए का टाइम फिक्स रहता है और उस बीच में वो चाय तक नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको हर चीज पे पॉइंट ऑफ टाइम में करना पड़ता है। अगर डीबीएस हो गया मतलब कंपनी बंद। सिंपल आज के डेट में यही है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, ई कॉमर्स हो या डेवलपमेंट का सेक्टर हो। अगर हमने डेटा स्क्रब कर दिया तो फिर सारी डेवलपमेंट खत्म हो जाएगी, अब कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो थिंक बिफोर एग्जीक्यूटिंग एनी कमांड, ठीक है, डिलीट, अपडेट और इंसर्ट, बिकॉज इफ यू आर अपडेटेड एनीथिंग दैट विल नॉट बी रोल बैक बिकॉज यू डोंट हैव एनी बैकअप। ठीक है, तो बैकअप पॉलिसीज भी होती है जो डेटाबेस के पार्ट में आती है, वो हम आपको नहीं बताए हैं और वो आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, आई थिंक सो। क्योंकि आप डेवलपर हो तो बेसिकली आप डेवलपमेंट करो, कोड आपको ज्यादा सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है, इंसर्ट भी लिखनी है तो एप्लीकेशन साइड से इंसर्ट होती है, बैकएंड से आप इंसर्ट नहीं करते हो, या फिर कोई टूल होती है वो इंसर्ट करती है। तो बस प्रैक्टिस रखना है बस, और तो हम कुछ कहेंगे नहीं। और दो चीजें और मैं बताता हूँ, मैं लिंक्डइन पे एक्टिव रहता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरा बहुत सारा फ्री सर्विस चलती रहती है, तो मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। आपको सीखना है तो आप लिंक्डइन ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिससे मैं बहुत सारे ट्रबल शूटिंग के वीडियोस डालता हूँ जो मार्केट में नहीं है बेसिकली, और वो ट्राई मैं कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग की है क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आए थे, तो मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ। कभी टाइम मुझे मिलता है तो मैं कुछ पूछ करता हूँ। आप चाहें तो आप लिंक्डइन भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन यू, कि आप सीखना चाहते हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ओके, तो ट्राई कीजिए सीखने की। और एंगुलर में तो हर साल हर 6 महीने चेंज होता है, पता है ना आपको? क्या कोई कुछ बोल रहा था? क्या सर, पोस्टग्रेसql सर्वर मेमोरी वैलिडेशन क्या है? मेमोरी वैलिडेशन? ये सर आपने एक बार पूछा था कि ये वाला खत्म हुआ है कि नहीं, मतलब आप ही ने पूछा था शायद। मेमोरी वैलिडेशन, मेमोरी पार्ट ना, मेमोरी ट्यूनिंग पार्ट आई थिंक। तो आस्किंग अबाउट डॉक्यूमेंट और टॉपिक? टॉपिक है सर शायद। ये तो मेमोरी, जो मेमोरी ट्यूनिंग का पार्ट होगा, मेमोरी के ट्यूनिंग में 4-5 चीजें मैंने बताई थी। शेयर्ड बफर था, वर्क मेमोरी था, मेंटेनेंस मेमोरी था, टेम बफर था और इफेक्टिव कैश साइज था। ये 5 है। तो इस 5 जो 5 होते हैं इसी के हिसाब से पोस्टग्रेस काम करता है, क्योंकि अदर आरडीबीएस में क्या होता है, एक वन टाइम हम मेमोरी एलोकेट करते हैं और हम अलग अलग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, वो खुद ही डेटाबेस इंजन डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन पोस्टग्रेस में क्या है,
क्योंकि ये OLTP और OLAP दोनों काम करता है, तो ये खुद डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है ना। ये वेयर हाउसिंग की तरह भी काम कर सकता है और ट्रांजेक्शन की तरह भी काम कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया ना, लोड के हिसाब से ना इन्होंने क्या किया, वर्कर में डिफाइन कर दिया। SQL में ऐसा फीचर नहीं है, Oracle में नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कुछ फीचर्स Oracle से उठाए और कुछ इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से उठाए और उन्होंने एक नया डेटा इंजन बना दिया, postgresql। तो इन्होंने दोनों चीजें उठा करके रखी हैं। तो इन्होंने इसमें डिफाइन है इसलिए किया क्योंकि आपको मेमोरी प्रोवाइड कर सके, मोर मेमोरी टू द डेटाबेस इंजन। तो कहीं कहीं क्या होता है कि जैसे आप अभी यहाँ पे इन्वायरमेंट ले लो, आप यहाँ पे 200-300 MB CSV फाइल अपलोड होती है। अगर मान लीजिए कि मैंने मेमोरी बोला कि आपको 4 MB मेमोरी दे दिया, तो आप सोचो कि 4 MB से 200 MB का फाइल अपलोड करने में कितना टाइम लगा, डिवाइड कर सकते। मोर देन 60 और अप्रोक्स 60 सेकंड के आसपास जाएगा, मान के चलिए 60 सेकंड बहुत है। द बेस्ट प्रैक्टिस और बेस्ट अप्रोच इज दैट कि डेटा जो भी एग्जीक्यूट होना चाहिए कमांड, वो मिली सेकेंड में होना चाहिए। DBO को रखा इसलिए जाता है कि आपका एप्लीकेशन ट्यून रहे और ट्रांजेक्शन रुके नहीं, कहीं पे होल्ड ना करे, वेटिंग ना कर सके। So that is a part of tuning. So everyone try to minimize the I/O and memory and CPU based on the configuration of the database engine. So that is a part of tuning only. So just go to the document, and I have also shared about that the cheat sheet of Postgres memory. Yes. So that is a cheat sheet. Before we don't have any cheat sheet, I have created as per my knowledge, as per my experience. How can we allocate memory to the Postgres server on the basis of total memory? There is a tuning part. Still, couple of projects and a couple of clients are facing same problem because it's totally not implemented yet. So client team is working on that. So that will help, and I think you have to keep in mind that cheat sheet as well. That is the best practice. We cannot allocate Postgres or any rdbms more than 70% of the total memory. If we have 8 GB of memory, we can mostly assume allocated 6 GB. Not more than that. So that is a key thing to keep in mind. And I always post or share my document on Skype group as well. There is an NCMon group and there is a dashboard group. So there is a post a couple of things that is according to the best practices and that the do's and don'ts. So these are things. Anything else? तो आप लोग सब लोग लिनक्स पे ही काम करने वाले हैं और एंगुलर पे और जावा पे। .NET वाले भी कोई हैं जिनको .NET में इंटरेस्ट है? C# ASP.NET। सर अभी के लिए तो सिर्फ एंगुलर पे ही सब कुछ हो रहा है। एंगुलर पे पता है ना, एंगुलर में हर 6 महीने बाद फीचर चेंज हो जाते हैं। आपको हर महीने मेहनत करना पड़ेगा, हर महीने। अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो आपको उसमें एल्गोरिथम यूज नहीं कर पाओगे, नए फीचर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। लास्ट 3 महीने में 7 बार नए पैकेज आए हैं उसके, मतलब नया अपग्रेड आ गया। और एंगुलर का इंटरव्यू तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि एंगुलर का इंटरव्यू थोड़ा सा टफ होता है .NET की अपेक्षा। वे लोग मोस्टली बेंगलोर 7 से और 7.5 से आई थिंक वर्क कर रहे हैं, लगभग मार्केट में 9 या 9 सेवा भी आ गए। तो आई थिंक कि आपको रेगुलर एक्टिव रहना पड़ेगा। प्रोफाइल साइट लाइक लिंक्डइन पे, लिंक्डइन पर एक्टिव रहिए, वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, मैंने भी बनाए हैं, मैं भी बहुत कुछ शेयर करता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं डेटा शेयर करता हूँ, प्लस थोड़ा बहुत ट्यूनिंग पार्ट। तो वी हैव अ टीम, वी हैव अ ग्रुप ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर DBA एंड डेवलपर्स। So they have joined on Facebook as well as WhatsApp group we have, but that is non-official, not official. Okay. तो मैं कुछ भी ऑफिशियल मतलब जस्ट ऑफिस के हिसाब से करता हूँ, नॉन ऑफिशियल जो होता है तो मैं बाहर करता हूँ, तो मुझे बस वहीं से मिलता है। मैं फेसबुक पे ज्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, तो दैट इज नॉट आवर टास्क बिकॉज इट्स ओनली फॉर टाइम पास, दैट टोटली टाइम किलिंग। So basically, LinkedIn is a good way to learn something because new features, because they have a new release, so you get too many things to learn from the LinkedIn. And some couple of my friends are already started their online training classes. I am also providing online classes, but this is non-official, not official. So this is the only first time in Carizon that I am providing training on database. तो प्लीज डू हार्ड। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो पिछले बंदे आए थे उनसे आप बेटर करो, अभी वो कंफर्म नहीं हुए हैं
तो मैं चाहता कि उनका बेटर करो, क्योंकि उनको मैंने बहुत बार समझाया लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। उनको यही लगता है कि मेरे कॉलेज लाइफ जो मिली है, जीन्स और टी शर्ट लाकर जो घूमा हूँ, जो पैसे मिले उड़ाने में बहुत मजा आता है। लेकिन जब कोड लिखने की बात आती है ना, तो नॉर्मल फ्लेक्स में नहीं लिखने आती है। आप लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, अभी मैं देखा बहुत लोगों का डॉक्यूमेंट बहुत बढ़िया लिखा है, अच्छा लगा मुझे देख करके। लेकिन वही बात है, मेहनत करते रहनी पड़ेगी आपको। आशा मतलब मेहनत छोड़ दोगे आप तो फिर कोई खड़ा नहीं कर पाएगा टीम, क्योंकि बहुत लोग हैं जो बस सैलरी उठा रहे हैं और घर जा रहे हैं और कोई स्कोप नहीं दिख रहा आगे चल करके। तो मेहनत मत छोड़िए। और पता ही है कि हम सब लोग मोह माया में पड़े हुए हैं। घर वाले सोचते हैं बेटा मेरा कॉलेज में से निकल के कंपनी में गया है तो अच्छे पैसे कमाएगा और घर में थोड़ा हेल्प करेगा। तो ऐसा ना कीजिए कि घर वाले भी परेशान हो उसके बाद, क्योंकि कंपनी भी परेशान हो, आपको टर्मिनेट करने की कोशिश करेगी। टर्मिनेशन तो बहुत कम होता है, रेयरली होता है, लोग डराते धमकाते रहते हैं, लेकिन मोस्टली कंपनी टर्मिनेट नहीं करती है बंदों को। तो बहुत सारे प्रोसेस है, पॉलिसीज है, तो समझाते हैं कि भैया आप नहीं इसमें परफॉर्म कर पा रहे तो दूसरे टेक्नोलॉजी में मूव हो जाओ। जैसे अभी क्लाइंट टीम वाले नहीं कुछ करते हैं तो उनको सेल्स में डाल देते हैं, सेल्स होने के लिए डेवलपमेंट में। तो मतलब कंपनी से टर्मिनेट नहीं करती। यू गेट मल्टीपल चांसेस टू वर्क ऑन दैट। सो थिंक पॉजिटिवली एंड डू हार्ड वर्क, सो दैट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ये मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत सारी चीजें देखता हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता कि आप डेवलपर हो, तो डेवलपर से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता कभी, क्योंकि मेरा बेसिकली अभी ऑनेस्ट डेवलपर से मेरी पटती नहीं है। क्योंकि उनका कोड मेरे पास आता है तो झगड़ा होना अनिवार्य है, क्योंकि वो गलत लिखेंगे और मैं उनको बार बार बताऊंगा भाई दिस इज नॉट अ बेस्ट अप्रोच। और एज पर एक्सपीरियंस एवरी वन एक्सपेक्टेड दैट कि बंदा सही लिखे। अगर आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है और प्रोग्राम आप ज्वाइन नहीं लिख के आते हो तो दैट इज वेरी बैड सिंपली। तो जरा ध्यान रखिए कि आपसे मिस्टेक ना हो कोडिंग में। पर्सनल लाइफ में बहुत सारी गलतियां होती है, आप सॉरी बोल कर निकल लेते हो, लेकिन अगर मैं कोड में गलती कर दिया, वो क्यूए के पास गया, क्यूए ने फिर मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेजी, भाई ये क्यूए रिपोर्ट है डिक्लेयर, भाई ये बंदे ने ये गलती की है, रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से काम नहीं किया है, तो आप पता ही है कि लाने वाले बहुत है ऊपर। मतलब गाली कम नहीं पड़ेगी, आप भरपूर मिलेगा होलसेल भाव में। तो ध्यान रखिए चीजों का। कुछ भी सेंड करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको मंथन जरूर करना है कि मैं किसको क्या लिख रहा हूँ, क्या भेज रहा हूँ, इसका कोई बैड इंप्रेशन है या बैड इम्पैक्ट है या नहीं। नहीं होता है तो आप बगल में पूछो, गूगल थोड़ा कर लो, एक्सपीरियंस किसी बंदे से टच में आ जाओ। क्योंकि मैं अभी तक देखा हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां की, तो मैं क्या करता हूँ कि बगल वाले से पूछता हूँ यार सही लग रहा है क्या, हो सकता है उसको कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं कि मुझे ही सब कुछ आता है और मैं बहुत बढ़िया लिख रहा हूँ, नहीं। तो इट्स द बेस्ट अप्रोच, आप कीजिए और थोड़ा सा किसी से रिव्यू करेगा, मतलब इसलिए रिव्यू जाता है कि भाई हमने जो लिखा है हमारे हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब वो 100% सही है। लेकिन अगर चीजें दूसरे को दिखाता हूँ तो कुछ ना कुछ कमियां नजर आ जाएंगी, जो एज पर बेस्ट प्रैक्टिस होना चाहिए, ना कि मतलब वो खुन्नत वाली बात नहीं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें फॉर्मेटिंग सही नहीं है, की फोन सही नहीं, आपने 75 फोन यूज कर दिया, कलरिंग पूरा कर दिया, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। तो थोड़ा डॉक्यूमेंटिंग के बारे में लिखिए, देखिए थोड़ा कोडिंग कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड कोडिंग कैसे लिखते हैं वो देखिए, वेरिएबल कैसे कॉल कराते हैं और लूप कैसे कॉल करते हैं या फिर कैसे फंक्शन कॉल कराते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए, मतलब कम ही नहीं पड़ने वाली आपको, लेकिन टाइम कम पड़ जाएगा। तो कीप इन माइंड एंड लर्न ऑन डेली बेसिस, one topic, one day only. If you are going to work on self-join, right join, union, partition product, these are the things. So learn only one topic in a day and practice another day, next day. That will boost your confidence as well as writing commands. So that is the best approach. And I think मुझे और कुछ तो नहीं कहना है, कुछ हो तो आप मुझे बताइए, हम तो मिलते ही रहेंगे व्हाट्सएप पे, स्काइप पे, सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, स्काइप पे और मेल पे। और जिसको ज्वाइन करना है मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप लिंक्डइन पे आ सकते हैं और यूट्यूब वाले जो चैनल है उसे भी आप आ सकते हैं, वहाँ भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई भी rdbms मार्केट में हो, सबका मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया है, जस्ट पुटिंग सम एफर्ट टू हेल्पिंग द फ्रेशर्स एंड L1 DBAs। यहाँ टॉपिक ऐसे ही स्टार्ट होता है कि दिस इज फॉर फ्रेशर्स एंड L1 ओनली। आई नॉट सेइंग कि भाई आप एक्सपर्ट हो तो आप मेरा वीडियो देखो या फिर हमें ब्लॉग करो या फिर इसको लाइक करो और कमेंट करो, नहीं, just for freshers and L1 DBAs. So think on that and think कुछ भी आपको हेल्प लगे, just think in that post-based training group because it is not possible to you all to respond at a time. So it will help for all others that is not getting data, connectivity or memory. So
डिफरेंट टाइप ऑफ इशूज यू आर फेसिंग। तो मेमोरी के बारे में मैंने बता दिया आपको कि मेमोरी प्रॉब्लम आती है तो मेमोरी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी के लिए प्रॉब्लम आती है, या तो आपको परमिशन नहीं है या आपका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो प्रॉपर आपने नहीं लिखा है। मीन्स दैट इफ यू आर कॉलिंग जेडीबीसी और ओडीबीसी दिस इज ड्राइवर, तो जस्ट गूगल अबाउट दैट जेडीबीसी एंड ओडीबीसी। तो जेडीबीसी आपने क्या लिखोगे कि भाई सर्वर नेम जाएगा, आईपी एड्रेस जाएगा, या फिर उसका कोई भी होस्ट नेम जाएगा। देन आप उस rdbms का कोड पास करोगे, चाहे वो SQL हो, MySQL हो या पोस्टग्रेस हो, व्हाटएवर। आई हैव ऑलरेडी शेयर अबाउट द कोड, डिफॉल्ट कोड ऑफ द ऑल rdbms आई थिंक इट्स नॉट आई विल शेयर दैट। तो पोर्ट नॉट पास करेंगे, फिर डेटाबेस का नाम पास करेंगे, एंड देन हम पास करेंगे यूजर नेम जिसको उस डेटाबेस पे या सर्वर पर परमिशन है। अगर कहीं भी कुछ गलत होता है तो कनेक्टिविटी आपकी डेटाबेस से नहीं बनेगी, मतलब आपका GUI नहीं ओपन होगा या फिर आपका एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो थिंक व्हाइल यू आर गोइंग टू ट्रबल शूटिंग एंड एप्लीकेशन साइड। अगर डेटाबेस चल रहा है और फिर भी एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स दैट यू आर नॉट रीचिंग द डेटाबेस। So there are telnet process, trash process is a networking command. So you have to think on that networking command as well, trash and ping. You can say that telnet. The three commands mostly we use in that troubleshooting part. Next is that purging policies. So every company has purging policies. If drive is getting full or there is no space in the drive or mount point, we have a purging policies. Or every company have a purging policy according to the business. So they are keeping 3 months data, yearly data, or based on the financial year. So these are purging policies. So don't keep data in a drive. This is not required. So just work and drop it and delete it. तो आपको गार्बेज इकट्ठा नहीं करना है सिस्टम के अंदर, जो मीनिंगफुल डेटा है, मीनिंगफुल फाइल है वही रखे। ये तो पता चला कि आपने 10 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखा है और यूज कोई नहीं कर रहे हो और शेड्यूल का स्पेस लेके बैठा पड़ा है सिस्टम में। तो ये सब सिस्टम को स्लो करता है, क्योंकि जब भी आप रिबूट करोगे सिस्टम, वो हर फाइल को रीड करेगा, प्रॉपर रहेगा, तभी वो अप होता है। तो देयर बहुत सारी चीजें सिस्टम में बैड सेक्टर हो सकते हैं, अब बोल सकते हैं कि इंडेक्स करप्ट हो सकते हैं, तो भी वो लोड नहीं लेगा। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो डरना नहीं है, उसके लिए स्टेप फॉलो करना है कि भैया कहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप फॉलो नहीं कर पाओगे देन दैट इज अब सर्च करते रहो गूगल पे और उसी से तो कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज का एरर जो होता है उसका आंसर उसी मैसेज में रहता है। जो पॉपअप आती है आपको जस्ट उस पॉपअप को बढ़िया से पढ़ना। अगर .NET है तो पॉपअप पक्का आएगा, अगर ये लिनक्स बेस्ड है तो इसमें कोई स्टेटमेंट जरूर लिख के आएगी। आपको जस्ट आराम से और वर्ड को ब्रेक करके पढ़ना है, सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ना है, आपको आंसर वही मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। लोग एरर देखते ही डर जाते हैं, अरे क्या फट गया, सिस्टम चल ही नहीं रहा। अरे डरने की जरूरत ही नहीं है भाई, लाल देख के डरने की जरूरत नहीं है, उसमें ही आपका आंसर है, उसमें आपका ट्रबल शूटिंग पार्ट है। तो ध्यान रखिए इस बात का। और कोई ये बड़ी चीज नहीं है डेवलपमेंट करना, भी डिजाइन भी करने की, आपको फ्लो पता होना चाहिए, SDLC पता होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन पता होना चाहिए, ये कोड वोड पता होना चाहिए और ज्वाइंस पता होना, और सम जो भी आपका जो एल्गोरिथम है, फंक्शन वो पता होना चाहिए। लेकिन आप अच्छे से काम कर पाओगे, बढ़िया लिख पाओगे। मेरा एक एक्सपीरियंस है सिंस 13 ईयर्स, मैंने आज तक एक ही मैनेजर से मिला जो जिसने उसने जो भी काम किया ना टोटली ऑप्टिमाइज लिखा। मतलब इतना अच्छा एक्सपीरियंस उस इंसान के पास था। ज्यादा टाइम मुझे काम करने के लिए नहीं मिला, लेकिन हाँ वो बंदा बहुत ही अच्छा था, उसने बहुत अच्छा कोड लिखा था, उसमें आप मतलब बग निकाल ही नहीं सकते हो। और उन्होंने तो 2 GB की मेमोरी में भी सर्वर चलाए हैं BSNL का। तो जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था उस टाइम में, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। तो ऐसे बंदे बहुत कम मिलते हैं, ऐसे डेवलपर बहुत कम मिलते हैं मार्केट में जो ऑप्टिमाइज पूरी फर्स्ट टाइम से ही लिखे, जिसको DB ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो आप भी ऐसा ट्राई कीजिए कि आपको मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े, आप मेरे से बेटर परफॉर्मेंस कीजिए। और होप मैं यही चाहूंगा कि आप ज्यादा सीखें और ज्यादा करें, क्योंकि हम लोग भी हर चीज काम नहीं कर पाते। आपके पास टाइम है, अभी लर्निंग टाइम है, जितना आप सीख पाएंगे सीखिए, और जितना हेल्प मेरे से बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली करूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप बार बार एक ही गलती ना दोहराएं। तो पता ही है तो बार बार जो गलती करता है वो गधा ही होता है। आई डोंट थिंक कि आपको गधा बनने की जरूरत है। पूरे घोड़े की रफ्तारें बनिए, घोड़ा बनिए, स्मार्ट वर्क कीजिए, थिंक द बेस्ट अप्रोच। और मुझे लग रहा है कि मेरे वर्ड्स बहुत लोगों को खराब लग रहे होंगे, लेकिन यही मेरा स्टेटमेंट है, क्योंकि IT मोस्टली सब यूज होता है, आपको धीरे सीख जाता है बोलना। तो थोड़ा ध्यान रखिए, और जो कुछ भी मेरे से हो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं किया
तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस रखिए, रिस्पॉन्ड मैं पक्का करूंगा कि मैं अननोन पर्सन को भी रिस्पॉन्ड करता हूँ, जिसको मैं देखा तक नहीं है, जानता तक नहीं। तो डेटा रिलेटेड कोई भी क्वेरी मेरे पास आती है ना, मैं 100% ट्राई करता हूँ रिजॉल्व करने का और रिस्पॉन्ड करने का। तो आज के लिए यही है, और मैं आपको दोनों लिंक शेयर कर देता हूँ, आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बोलिए, कोई बोलेगा तो बताइए, फ्री है अभी, ओपन क्वेश्चन जो भी कहना आप कर सकते हैं, पर्सनल हो या ऑफिशियल हो या फिर कुछ भी चाहिए। और जिनको हिंदी समझ में नहीं आता है, आप मुझे 1 पिंग कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपको विदेश में जवाब देंगे। देन स्टॉप करें फिर रैप सर्विस मीटिंग को। बोलो भाई।